اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلیبس اوور ویو، سم امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ ٹپس فار کینڈیڈیٹس، کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن، اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج 3248۔ اس حوالے سے میں سہیل انجم آپ سے مخاطب ہوں، سینئر او لیول اردو معلم میرا فاؤنڈیشن اسکول سے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج 3248 اس پہ کچھ سلیبس کا جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے جو کینڈیڈیٹس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ نویسی کی ایک مشق کریں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر گفتگو کر لیں کہ وائی چوز کیمبرج اردو 3248 سلیبس۔ ہمارا ایک موضوع یہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پیپر 2 سلیبس اوور ویو، پیپر 2 میں کیا چیزیں آتی ہیں، اور اس کی ایک بہت اہم مشق ہے ترجمہ نویسی، ٹرانسلیشن، جو کہ 15 نمبر کا سوال آتے ہیں اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور عموماً طلباء اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، اور اس میں ہم پورے نمبر کیسے لے سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سبق کے اختتام پر ہم کچھ جنرل ایڈوائسز ہیں جو کہ عمومی طور پر تمام طلباء کے لیے ہو سکتی ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ ہم کریں گے ترجمہ نویسی کی۔ امید کرتے ہیں کہ اس سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ ترجمہ نویسی کی مشق خود سے کر سکیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا وائی چوز کیمبرج اردو 3248 سلیبس۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس نصاب کا انتخاب کیوں کریں۔ وہ اس لیے کریں کیونکہ یہ نصاب آپ کو مختلف مواد اور عصری وسائل کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے ذریعے اپنی زبان کی مہارت کو مستحکم کرنے اور اپنی زبان کی حد اور اظہار کو بڑھانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اس نصاب میں چونکہ ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو کسی بھی شخص کی موجودہ دور کی جو اس کی زبان و بیان کی ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرتا ہے، تو اس لیے اس نصاب میں ایسی مشقوں کو ڈالا گیا ہے۔ یہ نصاب آپ کو اردو کا استعمال کرتے ہوئے مزید مطالعہ، ملازمت یا کاروبار کے لیے درکار ضروری مہارتوں اور زبان کے درست فہم سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیمبرج اردو 3248 کا نصاب بطور ثانوی زبان آپ کو پر اعتماد، ذمہ دار بنانے کے ساتھ ساتھ اردو سیکھنے والوں کی ذاتی نشو و نما میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہے 3248 کا امتحان دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال اردو سیکھنے کے حوالے سے ان کی ذاتی نشو و نما میں کافی اضافہ ہوتا ہے، اس میں ایسی مشقیں ڈالی گئی ہیں، تو یعنی اردو کی طرف خود بخود ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ہماری جو اگلی جو ہماری سرگرمی ہے اس حوالے سے کہ پرچہ دوم یعنی پیپر 2 جو ہے ہمارا، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر ویسے تو خیر یہ پرچہ جو ہے وہ سبھی کو معلوم ہوگا کہ 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 1.5 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور اس کے کل نشانات 50 ہوتے ہیں، یعنی کل نمبر اس کے 50 ہوتے ہیں، اور 50 نمبر جو ہے وہ اس کے اندر کچھ مشقیں دی گئی ہوتی ہیں۔ وہ مشقیں کیا ہیں؟ ان مشقوں میں کچھ قواعد کی چیزیں ہیں، یعنی گرامر کی چیزیں جن میں جملے دیے جاتے ہیں، جملوں کی تبدیلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلوز میسج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ مضمون نویسی دی جاتی ہے، اور سب سے آخری مشق جو اس میں دی جاتی ہے وہ ترجمہ نویسی ہے جو کہ 15 نمبر کی ہوتی ہے، اور جس کی ہم ابھی مشق کریں گے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں۔
तर्जुमा नवीसी। तर्जुमा नवीसी जो है ये 15 नंबर का सवाल आता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और इस 15 नंबर के सवाल को हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम पहले कुछ हिदायत को हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि तर्जुमा नवीसी क्या है? इस मश्क में उम्मीदवार को तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुख्तसर अंग्रेजी इक़्तिबास दिया जाता है, जिसका वो उर्दू में तर्जुमा करते हैं। वो अंग्रेजी का इक़्तिबास अनसीन होता है, वो कहीं से भी दिया जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता उसकी एक मिक़दार होती है और वो अमूमी मिक़दार ये है कि वो तकरीबन 150 अल्फाज पर या 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ होता है या 2 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो उसकी लेंथ इतनी होती है। और वो 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा कैसे किया जाता है, ये हम अभी देखते हैं। तर्जुमा नवीसी के अहम रहनुमा उसूल, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दिए गए अंग्रेजी इक़्तिबास का गौर से मुताला किया जाए। यानी आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसको बगौर एक मर्तबा पढ़ लीजिए। ऐसे ही बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल अंदाज में किसी भी तहरीर को पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पर तहरीरी तर्जुमा करने से पहले अंग्रेजी इक़्तिबास का उर्दू में ज़ुबानी तर्जुमा कर लिया जाए। यानी हमने पहले ऊपर से नीचे तक उसको पढ़ लिया और अपने ज़हन के अंदर हमने उसका पूरा एक जो मफ़हूम है, वो हमने बना लिया और ज़ुबानी तर्जुमा उसका कर लिया। अब उस ज़ुबानी तर्जुमे को कर लेने के बाद जब हमें काफ़ी हद तक उसका मफ़हूम समझ में आ गया, तो हमने जो है वो उसका जो कुल्ली मफ़हूम है वो अपने ज़हन में बना लिया। अलबत्ता लफ्ज़ी तर्जुमा करने से गुरेज़ कीजिए, ये बड़ी अहम बात है। अमूमी तौर पे चूँकि अ, उर्दू का जो है वो लिखने का अंदाज़ कुछ और होता है, अंग्रेज़ी लिखने का अंदाज़ कुछ और होता है, इसलिए हम लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करते। इसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल जो है, वो हम उसका ख़ास तौर पे ख़्याल रखते हैं। यानी स जैसे इंग्लिश के अंदर एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक फ़ॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, ऐसे ही उर्दू में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। तो उसका चूँकि ये ऑर्डर चेंज होता है, इसलिए हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमे के बजाय उसका जो मफ़हूम समझ में आ रहा होता है, हम उस लिहाज़ से उसका तर्जुमा करते हैं। तो अंग्रेज़ी जुमलों को उर्दू जुमलों में तब्दील करते हुए फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। तो हम कभी-कभी ऐसा करते हैं कि बाज़ अल्फ़ाज़ जो अंग्रेज़ी में आखिर में आ रहे होते हैं, हम उसको उर्दू में शुरू में ले आते हैं। तो ये जुमले की हैयत के और जुमले की फ़ॉर्मेशन के लिहाज़ से होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो कि इंग्लिश के अंदर यूज़ हो रहा है, उसको हम फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल में हम जब चेंज करते हैं, तो कुछ अल्फ़ाज़ का ऑर्डर जो है वो आगे-पीछे करते हैं। वो जुमले के लिहाज़ से होता है। अच्छा, आखिरी बात इसमें ये है कि अंग्रेज़ी जुमले के ज़माने यानी टेंस का ख़ास ख़्याल रखिए। यानी टेंसेस का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उर्दू में भी वही ज़माना इस्तेमाल कीजिए। यानी अगर अंग्रेज़ी जुमला माज़ी पास्ट में है, तो उर्दू जुमला भी माज़ी में ही होगा। यानी एक एक सेंटेंस है, अगर वो जो है पास्ट में यूज़ किया गया है, तो उसकी अंग्रेज़ी पास्ट में है, तो उसकी उर्दू भी पास्ट ही में होगी। मसलन हम यूँ कहें कि अली वाज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो हम उर्दू में उसका जुमला यूँ ही लिखेंगे कि अली जो है वो फुटबॉल खेल रहा था। तो हमने उसको ऐसे लिख दिया कि अली फुटबॉल खेल रहा है, तो ज़ाहिर है कि वो गलत होगा। और फिर गलत को जो है वो गलत ही शुमार किया जाएगा और उसके नंबर उसी लिहाज से डिडक्ट होंगे। तो अहम बात ये है कि टेंस का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। अच्छा, इससे अगली बात ये है कि जो अल्फ़ाज़ जो अल्फ़ाज़ असल में अंग्रेज़ी के हैं, लेकिन उर्दू में भी राइज हो चुके हैं, इन्हें उर्दू में वैसे ही लिख देंगे। मसलन जैसे कप है, कप को उर्दू में कप ही लिख देंगे। और जग है, गिलास है, ऐसे अल्फ़ाज़ जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में बराबर इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसको उर्दू में वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, अगली बात ये है कि इम्ला का ख़ास ख़्याल रखना है। बाज़ ब बच्चे ये समझते हैं कि इम्ला के नंबर नहीं कटते,
लेकिन अगर इमला ऐसा जो है वो मजमूई तौर पे आपके मफहूम पर असर अंदाज हो रहा है तो उसके नंबर कट भी सकते हैं। तो इमला ज़रूर आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि किसी गलती या इस्लाह की ज़रूरत पड़ने पर इस लफ्ज़ पर मज़ीद लिखने से यानी ओवर राइटिंग से गुरेज़ करें। बाज़ लोग काट देते हैं बच्चे उसको और काट के उसको जो है ना वो उसको अजीब से अंदाज़ में ओवर राइटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपने लिखना है तो उस पर एक एक सीधी-सी लाइन डालें और उसके ऊपर जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लफ्ज़ आप लिख दीजिए। इसको ओवर राइटिंग से गुरेज़ करें क्योंकि उससे कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। ओवर राइटिंग जो है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं समझी जाती। अगर आपको कोई लफ्ज़ आप समझते हैं कि गलती हो गई, तो आप जो है उसको काट के उसके ऊपर अपना मतलूबा लफ्ज़ लिख दीजिए, दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह अगर जुमले में गलती हो तो पूरा जुमला काट कर दोबारा लिखिए, लेकिन भरपूर कोशिश कीजिए कि बेजा काट-छाँट ना हो। अब कहीं पर एक लफ्ज़ के बजाय पूरा जुमला ही आपको गलत लग रहा है, तो आप उस पूरे जुमले के ऊपर एक लाइन खींच दें और उसके ऊपर अपना मतलूबा जुमला लिख दें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं समझी जाती, क्योंकि बेजा काट-छाँट आपकी तहरीर को ख़राब करती है। अमूमन जो है वो साफ-सुथरी तहरीर को पसंद भी किया जाता है और उस पर नंबर भी पूरे मिलते हैं और जितना ज़्यादा काट-छाँट होती है, उस पर नंबर कटने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, इससे अगली बात याद रखें कि तर्जुमा करते हुए अहम नुकात के 5 नंबर हैं, जबकि ज़ुबान की महारत के बेहतरीन इस्तेमाल के 10 नंबर हैं। तो जब भी हम तर्जुमा करते हैं, तो जो उसके अहम पॉइंट्स यानी जिसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं यानी जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर वो पूरी इबारत बेस करती है, उसके तो 5 नंबर है, लेकिन उसको आपने कैसे रिप्रेज़ेंट किया, कितने अच्छे अल्फ़ाज़ आपने उसको जो है वो पेश करने के लिए इस्तेमाल किए, इसके 10 नंबर होते हैं। इस लिहाज से ये पूरी की पूरी मश्क जो है वो आपकी 15 नंबर की बनती है। अब हम आगे चलते हैं। ये एक तर्जुमा-नवीसी की मश्क है। इसका पहला पैराग्राफ जो है वो दिया गया है और उसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे इसमें महारत रखते हैं, वो बराह रास्त इसको सेकंड स्टेप में इसको जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि वो बच्चे जो कि उसमें काट-छाँट करते हैं या वो तलबा जो कि मुकम्मल तौर पर अबूर नहीं रखते हैं, उनके लिए हम ये मश्क मरहलावार करवाते हैं। उस पहले मरहले में हम ये करते हैं कि हम दिए गए पैराग्राफ को हम जुमलों में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उस जुमले को एक-एक जुमले को हम उसका तर्जुमा करते हैं और बाद में उस तर्जुमे को हम जोड़कर पैराग्राफ में लाते हैं। कैसे? ये अभी हम देखते हैं। ये एक पहला मश्क़ी पहला जुमला है ये। इस जुमले में सेंटेंस है इट वाज़ 2 o'clock in the night a rich man couldn't sleep। ये एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस था। उसका हमने तर्जुमा क्या किया है देखते हैं। रात के 2 बजे थे और उस अमीर आदमी को नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, इस पे हमने कुछ अल्फ़ाज़ का ऑर्डर आगे-पीछे करके सेंस करते हुए इस जुमले को इस सेंटेंस को हमने मैनेज किया है। अगर हम लफ़्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैनेज ना हो पाएँ, जैसे इट वाज़ 2 o'clock इन द नाइट, अ रिच मैन, एक अमीर आदमी कुडन्ट स्लीप, सो नहीं पा रहा था। तो हमने मफ़हूम को लेके अल्फ़ाज़ का बेहतरीन चुनाव रखते हुए, हमने इसको रीअलाइन किया, रीअरेंज किया और वो बेहतरीन अल्फ़ाज़ जो हमारे ज़हन में आते थे, उसको लेके हमने इस अंग्रेज़ी सेंटेंस का उर्दू में तर्जुमा कर दिया। यानी रात के 2 बजे थे और उस अमीर आदमी को नींद नहीं आ रही थी। अगला जुमला जो हमने ब्रेक किया, वो देखते हैं He kept walking around the house, but still was feeling unrest। वो घर में इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी बेचैनी महसूस कर रहा था। बट स्टिल वाज़ फीलिंग अनरेस्ट, फिर भी बेचैनी महसूस कर रहा था। तो ये जुमला नंबर 2 है जिसका हमने तर्जुमा किया। ये हम ब्रेकअप में कर रहे हैं, हम इसको आगे जोड़ेंगे कैसे ये हम अभी आपको बताते हैं। After a while, he got exhausted and took out his car and went out on the street। कुछ देर बाद वो थक गया और उसने अपनी गाड़ी निकाली
और सड़क पर निकल गया। ये नंबर 3 सेंटेंस है जिसका उर्दू तर्जुमा किया गया। हम आगे चलते हैं। नंबर 4, ऑन हिज वे he saw a mosque which was light at that time. रास्ते में उसने एक मस्जिद देखी जो उस वक्त रोशन थी। नंबर 5, why the lights of this mosque are still up this time, he thought, let me switch them off myself. उसने सोचा इस वक्त मस्जिद की बत्तियां क्यों जल रही हैं, चलो मैं खुद ही इन्हें बंद कर देता हूँ। ये नंबर 5 सेंटेंस था जो उसने बनाया। अब हम आगे चलते हैं। ये 5 जुमले जो हमने तोड़े थे, ब्रेकअप किए थे, उन जुमलों को हमने अब यहाँ पर जोड़कर पैराग्राफ की सूरत दे दी। यानी वो जो 5 जुमले थे वो एक पैराग्राफ था, हमने उसको नंबर डाल के अलग अलग सेंटेंस में ब्रेक किया था, लेकिन अब हमने उसको सेंटेंसेस की सूरत से निकाल के हमने उसको जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में जोड़ दिया। अब वो कैसे जोड़ा ये देखते हैं। पैराग्राफ क्या था अंग्रेजी का? इट वॉज 2 o'clock in the night. A rich man couldn't sleep. He kept walking around the house but still was feeling unrest. After a while, he got exhausted and took out his car and went out on the street. On his way, he saw a mosque which was light at that time. Why the lights of this mosque are still up at this time, he thought. Let me switch them off myself. ये एक पैराग्राफ था, हमने इसको पहले जो जुमलों में तोड़ा था, अब हम ऊपर दिए हुए जुमलों को तोड़कर हम दोबारा जोड़कर एक पैराग्राफ की फॉर्म में ले आते हैं। ये एक मश्क है कि बच्चे जब वहाँ पर अपनी इस्लाह कर चुके होते हैं, वो काट छाट तोड़ जोड़ कर चुके होते हैं, तो वो वहाँ अगले स्टेप में उसको जोड़कर पैराग्राफ बना देते हैं। अब इस पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा क्या है ये हम देखते हैं। रात के 2 बजे थे, एक अमीर आदमी सो नहीं पा रहा था। वो घर में इधर उधर चलता रहा, लेकिन फिर भी वो बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वो थक गया, उसने अपनी गाड़ी निकाली और सड़क पर निकल गया। रास्ते में उसने एक मस्जिद देखी जो उस वक्त रोशन थी। उसने सोचा इस वक्त मस्जिद की बत्तियां क्यों जल रही हैं। उसने सोचा चलो मैं खुद ही इन्हें बंद कर देता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ मुकम्मल होता है और उस पैराग्राफ का जो उर्दू तर्जुमा है वो आपके सामने। इसके बकिया 2 पैराग्राफ जो हैं वो तलबा को हम देते हैं और वो बकिया 2 पैराग्राफ बच्चे इसी तरह से उसको ब्रेक करते हैं पहले और उसकी हम इस्लाह करते हैं और उस इस्लाह करने के बाद बच्चे उन दिए हुए सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेते हैं और उसमें चूँकि जो गलतियों की इस्लाह हो चुकी होती है इसलिए वो तर्जुमा तकरीबन ठीक होता है। इसमें जो इसकी अमली मश्क के बाद जो बच्चे इसको लिखेंगे उसको अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ये पैराग्राफ था, इट वॉज 2 o'clock, ये हमने अभी आपके सामने रखा जो आपने देखा और उसका तर्जुमा भी हमने किया। अब दूसरा पैराग्राफ इसका व्हेन, यहाँ से दूसरे पैराग्राफ की जो उर्दू है, when he went inside the mosque he heard someone crying. The rich man went to the man and asked, why are you crying? The crying man said that his wife is sick but he did not have enough money for her treatment. ये है सेकंड पैराग्राफ। इसकी जो उर्दू जो बनाई जाएगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि जब वो मस्जिद के अंदर गया तो उसने किसी शख्स के रोने की आवाज़ सुनी। अमीर आदमी उस शख्स के पास गया और पूछा आप क्यों रो रहे हैं। रोने वाले शख्स ने बताया कि उसकी बीवी बीमार है मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। ये दूसरा पैराग्राफ था जो हमने आपके सामने रखा जिसका तर्जुमा हमने किया। अब तीसरा पैराग्राफ
वैसे ये जो 2 पैराग्राफ की जो प्रैक्टिस है वो आमरी दौर में तलबा करते हैं। हम यहाँ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि एक पैराग्राफ को इस तरह से पहले ब्रेक करना है, फिर ऐसे ही दूसरे को, फिर तीसरे को, तो फिर हमने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में जोड़ना होता है। तीसरा पैराग्राफ जो है वो है इसका the rich man took out his wallet and gave all the money to the man. He also gave him his card and said, "This is my card. It has my number and address on it. If you need more help, let me know." The man said without taking his card, "No need, sir. I have his address. I don't need this card." The rich man was surprised and asked, "Whose address do you have?" The man replied, "The address of the one who sent you to help me at 2 o'clock at night." ये आखिरी पैराग्राफ है। इसका हमने जो तर्जुमा किया है वो देखते हैं कि इसका तर्जुमा क्या बनता है। उस अमीर आदमी ने अपना बटुआ निकाला और उसमें जितने पैसे थे वो सब उस शख्स को दे दिए। इसके बाद उसने उसे अपना कार्ड देते हुए कहा, "ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर और पता दर्ज है, अगर आपको मज़ीद चाहिए हो तो ज़रूर बताना।" उस शख्स ने कार्ड लिए बगैर ही कहा, "इसकी ज़रूरत नहीं सर, मेरे पास उनका पता मौजूद है, मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं।" अमीर आदमी ने हैरान होकर पूछा, "किसका पता है आपके पास?" उस शख्स ने जवाब दिया, "उसका पता जिसने रात के 2 बजे मेरी मदद के लिए आपको भेजा।" ये था वो इसका आखिरी पैराग्राफ का तर्जुमा जो हमने आपके सामने रखा। और अमूमी तौर पे बच्चे ये पहले पैराग्राफ की जो ब्रेकअप वाली प्रैक्टिस करने के बाद बाकी 2 पैराग्राफ करने के काबिल हो जाते हैं। उसमें कहीं कहीं इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस के बाद आपके सामने तर्जुमा नवीसी करना काफ़ी हद तक आसान हो गया होगा। हम इसकी इस हवाले से जो मज़ीद बातें हैं वो हम अमली प्रैक्टिस में करेंगे। यहाँ तक कि ये मश्क ख़त्म होती है हम कुछ बातें जो कि इस मश्क के बाद अमूमी तौर पे तलबा को बताते हैं वो आपके सामने रखते हैं। वो बातें क्या हैं? यदि वो कुछ गलतियां भी हैं और कुछ हिदायत भी हैं। You can find sample questions and marking scheme on the Cambridge website at www.cambridgeinternational.org। अब मार्किंग स्कीम और सैम्पल पेपर और उसके साथ साथ सिलेबस वगैरह आप यहाँ जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ when you are attempting a past question paper or question from a past paper, complete it without referring to your notes so that you get a true idea of your strength and weaknesses. Then go back through the paper using your notes. आपने जो नोट्स बनाए होते हैं आप उनकी मदद से जो है वो पास पेपर सॉल्व करें और अपनी गलतियों को कहीं नोट करें और अपनी गलतियों को नोट करके उस लिहाज से आप अपनी बार बार इस्लाह करें। इंशाल्लाह इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो रफ वर्क होता है वो बड़ा ख़ास होता है। अपनी गलतियों को आप हाईलाइट करके उनको याद रखें कि वो गलतियाँ रिपीट ना हो। गलतियाँ जब रिपीट होती हैं तो वो फिर आदत बन जाती हैं। Use a different colored pen to make corrections and changes after you have done as much as you can on the paper. Mark it using the mark scheme. Take notes of any points that you lost marks on. मुख्तलिफ किस्म की जो गलतियाँ हैं अगर आप उनको मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के पेन से आप हाईलाइट करेंगे तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। और वही है कि जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उनको कहीं नोट कर लें कि ये गलतियाँ दोबारा ना आए। During your revision, test yourself again on your weaker areas to check your progress. This will help you to remember these skills when you get to the examination.
جب بھی آپ ریویژن کریں تو اپنے ویک ایریاز کو ضرور چیک کیا کریں. جب بھی آپ کے یہ ویک ایریاز سامنے آئیں کوشش کریں کہ وہ ریپیٹ نہ ہو. یہ ویک ایریاز ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے امپروو ہوتے رہیں. انشاءاللہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ ایگزام کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کافی حد تک اپنی غلطیوں پر قابو پا چکے ہوں گے. Remember to practice each skill. Each skill that you practice will also help you another skill. جو بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ وہ کسی نہ کسی دوسرے اسکل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے, اور جب آپ ایک چیز کی اصلاح کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ دوسری جگہ پر بھی آپ کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. تو مثلاً اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر آپ نے جیسے جو جملوں کی پریکٹس آتی ہے, جملوں کی پریکٹس کے لیے جب آپ اس کو زمانے جو ہے وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں کوئی جملہ تبدیل کرتے ہیں تو وہی جملوں کو تبدیل کرنے کا جو انداز ہے وہ آپ کے ترجمہ نویسی میں بھی کام آ سکتا ہے, وہ آپ کی مضمون نویسی میں بھی کام آ سکتا ہے, اور وہ جو دوسری جو آپ کی مشقیں ہیں تفہیم وغیرہ وہاں پر بھی کام آ سکتا ہے. تو وہ ایک اسکل جو آپ کی ہے وہ جملوں کو ترتیب سے لکھنے کی یا ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں تبدیل کرنے کی, یہ آپ کی دوسری جگہ پر دوسرے انداز میں بھی کام آ رہی ہوتی ہے. اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ ایچ اسکل دیٹ یو پریکٹس ول آلسو ہیلپ یو ود another اسکل. تو یہ باتیں تھیں اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ آج اس ترجمہ نویسی کی مشق میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہم طلباء کو ایک انفرادی طور پر جو ہے وہ ورک شیٹ دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں, ان کی اصلاح کا کام انفرادی طور پر کیا جاتا ہے. بس اب ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ. چھوڑیں گے نہ ہم کوشش تعمیر نشے بند, گرتی ہے اگر برف تو 100 بار گرے اور. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں کا طالب سہیل انجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.